explain. Wait. See. So I will try once again. No. Look here. Since you have asked me, okay. So question number 1, part 3, right? Third one, right? So it is 2x square minus root 5x plus 7 is equal to 0. Any quadratic equation in the standard form should look like ax square plus bx plus c equals 0, where a, b and c belong to the set of real numbers. मतलब ए बी और सी रियल नंबर होने चाहिए. तो हमारे इक्वेशन में ए क्या है? ए की वैल्यू 2 है, बी माइनस ऑफ रूट 5 है और सी क्या है? 7 है. ये तीनों रियल नंबर तो है. ठीक है. और एक चीज़ होनी चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ए इज़ 2 विच इज़ नॉट 0. सो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सारी कंडीशन तो मैच कर रहे हैं. अगर ए बी और सी रियल नंबर्स है और ए 0 नहीं है तो ax square plus bx plus c will become quadratic equation. समझ में आया प्रिंस? ओके ग्रेट. फिफ्थ का फोर्थ, टू पीपल हैव आस्क्ड मी दिस डाउट, अरुणिमा एंड नितिश. अथर्व, नितिश, ऑन योर कैम. प्रणव, ऑन योर कैम. कीप योर कैम ऑन. कैम ऑफ नहीं होना चाहिए. कैम ऑफ हुआ तेरे को मैं बाहर निकाल दूंगा. ओके. हमें बोला है कि in each of the following questions check whether the given values are solutions of the equation or not. तो हमारा इक्वेशन क्या है? पहले ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी टाइम्स एक्स माइनस बी सी इक्वल्स 0. ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी टाइम्स एक्स माइनस बी सी इक्वल्स 0. ठीक है. अच्छा, x की वैल्यू है माइनस बी बाई ए कॉमा सी बाई बी. सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to substitute each value of x in the given equation and check whether LHS comes equal to RHS or not, and RHS is 0. ठीक है. सो LHS लिखेंगे हम लोग. we'll start with LHS. first we'll write when x is equal to minus of b by a. So LHS is abx square plus b square minus ac times x minus bc. दिस इज प्योर एल्जिब्रा. ओके. एक्स की जगह पे माइनस बी बाई डाल के सॉल्व करना है मुझे. सो ए बी ब्रैकेट माइनस ऑफ बी बाई ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी टाइम्स एक्स की जगह पे अगेन माइनस ऑफ बी बाई ए minus BC. I hope you are able to see. You want me to zoom in? You want me to zoom in? It's visible, right? Great. Okay. अब यहाँ पे see this is AB times minus of B by A. Ruzan, next 5 lines. I wanted to be finished today. Get to work. Plus here, okay, one small thing I want to show here. Minus of b by a times b square minus ac. ये जो माइनस बी बाई ए है उसको मैंने आगे लिख दिया और ये प्लस के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन गया. देन माइनस बी सी. ओके. हियर this a will get cut with this a, so you get minus b square. अच्छा, this minus b will get multiplied inside, minus b by a will get multiplied inside with both the terms, so it will become minus b cube by a and it will become plus abc by a plus abc. Yes. So wouldn't minus b by a whole raised to 2, right? This whole raised to 2. Minus b by a, the ab x square.
Oh, sorry. This was square, right? This square you're talking about, right? Yes, sir. Yes. Yeah, I'm sorry. We'll just change that. So this will become AB times B square by A square. So minus B square is B square and A square is A square. Now this A will cut with this A square, okay, and we will get B cube by A. Okay, here again minus B by A will multiply with minus AC, we'll get plus ABC by A and minus BC. Okay, A will cut with A. Achha, B cube by A will cut with minus of B cube by A. This will be 0. Plus BC minus BC will become 0. So the final answer is coming out to be 0. Yeah, some algebraic mistakes which I also made. But the final answer comes out to be 0, which is equal to RHS. That means x is equal to minus of B by A is a root of, is a 0 of, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था, सॉल्यूशन 0 रूट, ये सब करेक्ट है, मैं पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है सॉल्यूशन, इज अ रूट की जगह सॉल्यूशन भी लिख सकते हो ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ओके. दूसरी एक वैल्यू है x की, उसको भी तो चेक करना पड़ेगा. सो व्हेन x इज इक्वल टू c बाय b, प्रणव आर यू राइटिंग इट, या तू कुछ और देख रहा था तेरे कंप्यूटर में? हाँ, क्या देख रहा था तू? कुछ नहीं देख रहा था. तूने होमवर्क किया है ये वाला 4A 4C लास्ट वीक दिया था, होमवर्क किया है तूने? किया है होमवर्क? तू पकड़ा गया बेटा आज, तेरे को मैं दिखाता हूँ, तू रुक. तू, मेरे को लग रहा था तू भोला नादान बच्चा है, लेकिन तू नहीं है, तू बहुत शाना है. अब मैं तेरे को दिखाता हूँ, तू रुक जा बेटे. LHS ABX square plus B square minus AC times X minus BC. Now I have to take X as C by B. Let's take it as C by B. So AB bracket C by B the whole square plus B square minus AC bracket times C by B minus BC. ये हो जाएगा AB टाइम्स C स्क्वायर बाय B स्क्वायर प्लस C बाय B टाइम्स B स्क्वायर माइनस AC माइनस BC. ठीक है, ये B स्क्वायर के साथ कटेगा, तो ये बचेगा AC स्क्वायर बाय B प्लस C बाय B अंदर मल्टीप्लाई होगा, विल गेट CB स्क्वायर बाय B माइनस AC स्क्वायर बाय B, और यहाँ पे आएगा माइनस BC. ये B ऊपर वाले B स्क्वायर के साथ कटेगा, सो यू गेट AC स्क्वायर बाय B प्लस CB माइनस AC स्क्वायर बाय B माइनस BC. ठीक है, सो माइनस BC प्लस BC कटेगा, minus AC square by B plus AC square by B, and the answer will be 0, which is equal to your RHS. ठीक है, therefore x is equal to C by B is a solution or a root of given quadratic equation. प्लीज़ नोट इट डाउन, जिसको भी इसमें डाउट था, और जिसने किया है सॉल्व अच्छे से एक बार चेक कर लो.
कौशल, आर यू देयर? कौशल, क्या हुआ, कैम क्यों बंद है? Niharika, where are you? I can't see you. Where? Ah, yeah, I can see you now. Sir, I have doubt in question number 9. 4A. 4A, question number 9. Yes, sir. Okay, very good. Check whether 3 is a root of this equation. I think if I want to check whether 3 is root of this equation, I will just take LHS, put 3 in the place of x, take RHS, put 3 in the place of x, solve, and if LHS becomes equal to RHS, then it is a root. किसने इस तरीके से किया है, किसी ने? Yes, sir. So I have done it. Yes. Niharika, have you tried that? Yes, sir, but I am not getting. Okay. Sir, the answer is coming that it is not a root. It is not a root. Okay. ठीक है, मैं एक बार लिख लेता हूँ क्वेश्चन. अंडर रूट ऑफ x square minus 9 plus under root of x minus 1 x minus 3 is equal to under root of 4x square minus 14x plus 16. ठीक है, so this is your equation. To check whether x is equal to 3 is a root of this equation or not, we'll first take LHS. ठीक है, in the place of x I'm just going to put 3 square minus 9 plus under root of 3 minus 1 bracket 3 minus 3. So 3 square is 9, 9 minus 9 is 0, 0 root is 0. 3 minus 1 is 2, 3 minus 3 is 0, 2 into 0 is 0, 0 root is 0, which is 0. LHS is 0. RHS is under root of 4 into 3 square minus 14 times 3 plus 16. So this will become 3 3s are 9, 9 4s are 36 minus 42 plus 16. 36 minus 42 is minus 6 plus 16, which is root 10. So therefore LHS is not equal to RHS, and therefore 3 is not a root of given quadratic equation. तुम्हें कौन बोल रहा है कैसे लिखने के लिए? तुमने कितनी बार लिखा देखो? बोलना आता है? बोलो.
कॉपी नहीं करना. Any other doubt, guys? Exercise 4C. Exercise. So question number 17. Question number So question number 14. 17. 14 and 17. Anything Yes. else apart from those two? 35 and 38 also. Okay, 35, 38. Okay, let me mark them. 17. सबसे पहले तो 14, right? Question number 14. Then somebody said question number 17. Then 30 what? So 35 and 38. 35, 38. 35, 38. Anything else apart from these four? So 22, question number 22. Okay, 22. Anything else? So question 26. Okay, 26 seems easy. मेरे को नाम बताओ किसको किसको किस में डाउट है. सो आई एम गोइंग टू टॉक टू दैट पर्सन. 14 में किसको डाउट है? So Arunima. Okay. 17th. So me, Keshav. 22. So again me, Arunima. Okay. 26. Sir Janvi. 35. So me, Arunima. In 38 also. And I think Niharika also, right? Also me, sir, Nishesh. प्रिंस को एक में भी डाउट नहीं है. Sir, me also in 38. Sir, me too. 38, caution. Cool. It's a very nice question. 38th one. Aniket, you don't have any doubt? Can't hear you. प्रणव, तेरे को डाउट नहीं है किसी में? तूने किया है, होमवर्क किया है ये? हाँ? तो गधे, तू होमवर्क करेगा तभी डाउट निकलेगा ना तेरा. ठीक है, चलो एक एक करके विल टेक द डाउट्स. x square minus x minus a bracket a plus 1 is equal to 0. x square minus x minus a square माइनस ए इज इक्वल टू 0. मैंने क्या किया, मैंने सारे ब्रैकेट खोल दिए. यही है ना क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
minus a bracket a plus 1. Yes. So I just opened all the brackets. Now see, I'll just do some regrouping. x square minus a square को एक साथ लिखता हूँ, minus x minus a को एक साथ लिखता हूँ. x square minus x a square को फैक्टराइज करके I'll write x plus a x minus a. माइनस एक्स माइनस ए से माइनस की साइन बाहर निकाल के अंदर लिखूंगा x plus a. Now I'll just take out common from both the terms. x plus a बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x minus a minus 1 is equal to 0. जिसने भी नहीं किया है ना, प्लीज़ नोट कर लो. अगर तुम्हें नहीं आया है ये मतलब तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड के फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. Therefore x plus a is equal to 0 और x minus a minus 1 is equal to 0. Therefore x is equal to minus a or x is equal to a plus 1. Please note it down. Note it down and check the answer whether it is correct or not. आगे करो, तुम क्या कर रहे हो टाइम पास? क्या बोलना है मेरे को? मैंने तुम्हें क्या बोला? तुम इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो यार. कॉपी वॉपी छोड़ो, तुम पहले ये काम करो. मैं तुम्हारी टेस्ट लेने वाला हूँ. 4 है ना ये, बस ये 4 ही करना है तुम्हें. अभी तुम लास्ट पे हो. ये तुमने क्या है ये? हाँ हाँ एक एक साउंड सुनो लिखो, सुनो लिखो. 10 बार करोगे. चुप, रुकना नहीं है, जल्दी करो. ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ किया. वो तुमने किया नहीं है ठीक से. तुम सिर्फ वो अ वाला ठीक से किया था, बाकी सब तुमने जल्दी जल्दी खत्म कर दिया. डू इट प्रॉपरली. डन? लिख लिया सबने? ओके, सो दिस डाउट इज क्लियर. तो इसमें एक चीज है कि यू डोंट हैव टू ऑलवेज डू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. फैक्टराइजेशन से भी आता है ये. फैक्टराइजेशन से भी काम हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है? ओके, दैट वाज द फर्स्ट वन. देन द 17th वन, केशर का डाउट है ये. ओके, लेट्स सी. इसमें भी वही लग रहा है मेरे को. तो a square b square x square plus b square x minus a square x minus 1 is equal to 0. Okay, Janvi. ठीक है, तो मैं ग्रुपिंग इधर ही कर देता हूँ. देखते हैं आगे क्या होगा, देखी जाएगी. तो बी स्क्वायर एक्स विल कम आउट कॉमन फ्रॉम बोथ द फर्स्ट 2 टर्म्स. अंदर बचेगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर निकल गया, एक एक्स अंदर बचेगा प्लस 1, क्योंकि बी स्क्वायर एक्स पूरा बाहर निकल गया फैक्टर. माइनस 1 बाहर आएगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है थर्ड और फोर्थ टर्म में. और ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 अंदर बचेगा. ठीक है, अंदर साइन चेंज हो जाएगी. सो इट विल बिकम बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1. सो एक्स इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए स्क्वायर. Kesher, check your answer. Yes. So what was the doubt, Kesher? Were you trying for splitting the middle term? Yes, sir. First, when I saw this question, I was like, what the hell is this question? Very I got honest. scared, sir, very much. And after I saw that, it's also effortlessly, sir. Very nice. Because this is just grouping and taking out common, which we have learnt in class 9.
So yeah, not all the question in quadratic equation are to be solved by splitting the middle term. When they say factorization, grouping and taking out common as well as splitting the middle term, both will be used. Okay, like in this question we used grouping and taking out common. Yes, sir. Okay, note it, and then we'll go ahead. के लिए पहले ऐसा एक राउंड बना, फिर उसको ऐसे लेके जाओ, ऐसा करो और इसके ऊपर लगाओ, समझा? राउंड, ठीक है? फिर से लिखो ऐसे, तो लेकिन मैं बनाऊंगा ये तो स्टैंडिंग में ना वैसा, फिर तो के लिए फिर तो दो दो एक ये रखो तीनों चीज़। जैसे मैं ज़्यादा ना हो आपने। हाँ, ये देखो ना, इसमें ऐसे ये gap। हाँ वो गैप तुम छोड़ दो, तुम गैप मत बनो, तुम इसलिए गैप बना रहे थे, वो नहीं है गैप, मैंने बनाया वैसा, इसको चार्जिंग हो गया ये डाउट क्लियर? चलो आगे जाते हैं। 22 अरुणिमा, 26 का तो डाउट क्लियर हो गया जानवी का, जानवी सेड दैट। 22 पे आता है। सो अरुणिमा का जो डाउट का जो पैटर्न है ना, आई फील के जहाँ पे यू फाइंड द वेरिएबल्स ए बी सी, वो थोड़ा तुम्हें डिफिकल्ट जा रहा है ना? Yes, sir. या बट इट्स ओके, फेयर। आई विल शो यू, सी व्हाट यू हैव टू डू इज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना ऐसे वाले, उसको सॉल्व करो, then you will gain confidence. I will show you this how to do it. See, a upon x minus a, this is nothing but some complex algebra और कुछ है नहीं है, b upon x minus b and is equal to 2c upon x minus c, ठीक है? x is not equal to abc, of course वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इफ दैट इज़ द केस देन तुम्हारे डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाएंगे, सो x ऑफ कोर्स शुड नॉट बी इक्वल टू abc, ठीक है? लेकिन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आई टेक LCM, फर्स्ट आई टेक LCM ऑफ दीज टू डिनोमिनेटर्स x माइनस ए एंड x माइनस बी, ठीक है? सो यहाँ पे नीचे मैं मल्टीप्लाई करूँगा x माइनस बी और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा x माइनस ए। अच्छा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड in the denominator as well as in the numerator, in the denominator as well as in the numerator, ठीक है? So a bracket x minus b upon x minus a bracket x minus b plus b bracket x minus a the whole upon x minus a bracket x minus b, which is equal to 2c the whole upon x minus c. I don't see any other way of solving this. This is the only way. So let's do it ना, देखते हैं क्या आता है. Numerator will become ax minus ab plus bx minus ab the whole upon अच्छा x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सी ये भी तुमने 8th क्लास में सीखा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स, दो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन मैं ओरली कर रहा हूँ यहाँ पे, बट एक्चुअली तुम ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये तुम्हें मिलेगा, ठीक है? विच विल बी इक्वल टू 2c अपॉन x माइनस c। अच्छा, ऊपर क्या हो जाएगा? यू विल गेट ax प्लस bx माइनस 2ab,
ठीक है, -2ab। इसके साथ यू विल मल्टीप्लाई x माइनस सी। ये x माइनस सी राइट साइड के डिनोमिनेटर में, सो व्हाट आई एम डूइंग इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, विच इज इक्वल टू, बिकॉज आई डोंट सी देर इज एनी अदर वे, कॉम्प्लेक्स में उतरना ही पड़ेगा तुम्हें इसमें, विच इज इक्वल टू 2c ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो एक एक करके। तो कैसे करूँगा मैं मल्टीप्लाई? पहले मैं x को सबसे मल्टीप्लाई करूँगा तीनों से, फिर माइनस सी को तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा। तो x को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा आई विल गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab(x). अब मैं माइनस सी को मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस ac(x) माइनस bc(x) एंड माइनस सी को जब माइनस 2ab से मल्टीप्लाई करूँगा आई गेट प्लस 2abc। ठीक है, अब राइट हैंड साइड जिसमें 2c ब्रैकेट के बाहर है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक करके। सो 2c(x) स्क्वायर माइनस 2ac(x) माइनस 2bc(x) प्लस 2abc। ठीक है, डोंट वरी कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है यार, ये तो इतना लंबा हो गया, अब क्या करेंगे, हो जाएगा, सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। आई नो दिस इज द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गिव अप, उनको लगता है ये तो गलत ही है। दिस इज रॉन्ग एब्सोल्युटली, बट ये बिल्कुल गलत नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है। पहली चीज़, दोनों साइड में प्लस 2abc है जो कटेगा, यू सी दैट, पहली चीज़ खत्म हो गई। अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे, विल ब्रिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, विल ब्रिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड सो दैट योर राइट हैंड साइड बिकम 0 एंड द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर। सो आई हैव ax square plus bx square, this minus 2cx square will come here, minus 2cx square। ठीक है, अच्छा उसके बाद है माइनस 2abx, उसके बाद है माइनस acx, ये जो माइनस 2acx इधर आके प्लस 2acx बन जाएगा। अच्छा, फिर माइनस bcx ऑलरेडी है मेरे पास, माइनस bcx, माइनस bcx, ये माइनस 2bcx वो साइड आके प्लस 2bcx बन जाएगा। एंड वी हैव ब्रॉट एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड विल बिकम 0। अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। देखो मुझे कुछ लाइक टर्म्स दिख रही हैं, उसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। ये दोनों लाइक टर्म है, इसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ। सो इट विल बिकम ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस माइनस 2cx स्क्वायर माइनस 2cx स्क्वायर माइनस 2abx प्लस acx प्लस bcx इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ पहली तीनों टर्म में से, बिकॉज अब मुझे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो नाउ आई एम थिंकिंग वेदर डू आई ग्रुप एंड टेक आउट कॉमन और व्हाट शुड आई डू। सो मैं देखता हूँ ये पहली तीनों टर्म को, इफ़ आई टेक आउट एक्स स्क्वायर कॉमन देन a प्लस b माइनस 2c विल बी लेफ्ट हैंड साइड। इफ आई टेक आउट x कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ देम, x common because that's the only common thing, then what will be left inside, minus
2ab then AC and BC. So I don't think that's the right choice because उससे कुछ simplify होगा नहीं. ओके सो क्या मैं दो टर्म को कॉमन साथ में ले लूँ? अच्छा तो दो टर्म को कैसे ले सकते हैं इसमें से? ओके एक ऑप्शन है कि मैं ये पहले दो टर्म को ले लूँ साथ में कॉमन, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ. देन मैं ले सकता हूँ ये थर्ड टर्म को और ये वाली टर्म को, और फिर वो जो बची हुई दो टर्म है उसको कॉमन ले सकता हूँ. अगर पहले दो में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ अंदर बचेगा a प्लस बी. अगर मैं थर्ड और फिफ्थ टर्म को साथ में लेके तो कॉमन क्या निकालूंगा? ये भी तो गड़बड़ है. Okay, I think I have a solution. I have a solution. आ रहा है कुछ दिमाग में मेरे. Just wait. So what I'll do is, देखो ये जो x वाले टर्म्स है ना उसको मैं वापस इस साइड भेज रहा हूँ. I'll tell you why. पहले मुझे इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने दो. एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस बी माइनस 2c. अच्छा ये सब उधर चले जाएंगे, इधर हो जाएगा 2abx माइनस acx माइनस bcx. ओके सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 2c. यहाँ पे x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2ab माइनस ac माइनस bc. ओके नाउ आइडियली वी शुड गेट टू आंसर्स, बट मेरा तो x यहाँ पे कट हो रहा है. सो ये x और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कट करके x की वैल्यू जो फर्स्ट एक आंसर आ रहा है दैट इज़ 2ab माइनस ac माइनस bc अपॉन a प्लस b माइनस 2c. आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम करेक्ट और नॉट. पीछे आंसर क्या है? आंसर्स में आंसर क्या है इसका? सोल्यूशन क्या है? Sir, you have not sent the answer. सॉरी Sir, you have not sent the answer. I have not seen the answers. Let me check. This is which question? Question number 20. Which one was this? 22. 22. ओके एक आंसर है a और दूसरा आंसर है 2ab अपॉन a प्लस बी माइनस 2c. a प्लस बी माइनस 2c तो आ रहा है, लेकिन ऊपर 2ab के साथ ac माइनस bc भी आ रहा है. तो मतलब कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ तो की है कुछ मेजर वाली. लेट अस रीचेक आवर स्टेप्स. हमारे स्टेप्स रीचेक करते हैं एक बार हम लोग. सो a के साथ x माइनस, पहले तो क्वेश्चन चेक करते हैं. क्वेश्चन तो सही लिखा है ना मैंने, 22nd वन. a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b इज इक्वल टू 2c अपॉन x माइनस c. क्वेश्चन करेक्ट है. नाउ आई हैव टेकन द LCM ओवर हियर. सो a ब्रैकेट x माइनस b प्लस b ब्रैकेट x माइनस a अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b. सो हियर दिस बिकम्स ax माइनस ab प्लस bx माइनस ab. करेक्ट तो है. नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab, ये भी करेक्ट है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ax प्लस bx माइनस 2ab के साथ x माइनस c का, करेक्ट है. 2c के साथ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab का, ये भी करेक्ट है. तो गड़बड़ कहाँ पे हुई है? अच्छा पूरा एक्सपांड किया, एक बार ये चेक कर लेते हैं. सो x मल्टीप्लाई किया पहले मैंने ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर
माइनस 2abx, फिर c मल्टीप्लाई किया माइनस सी, माइनस acx माइनस bcx माइनस प्लस 2abc, 2cx स्क्वेयर माइनस 2acx माइनस 2bcx एंड प्लस 2abc। सब करेक्ट है, वो कट भी हुआ, सही है। ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर साथ में है, माइनस 2cx स्क्वायर ये साइड आया, माइनस 2abx ऑलरेडी इधर था, माइनस acx प्लस 2acx माइनस bcx प्लस 2bcx, माइनस acx प्लस 2acx इज acx and minus bcx plus 2bcx is plus bcx minus 2abx। ओके, यहीं से सारा गड़बड़ शुरू हुआ है, मैंने शायद फैक्टराइजेशन सही नहीं किया है। कौशल तेरे को आया ये? नो सर। किसी और को ये आया? ओके, वन मोर फाइनल ट्राई, अदरवाइज अभी नहीं आता है तो हम आगे बढ़ेंगे। इसको मुझे फिर अकेले में सॉल्व करना पड़ेगा आराम से। बट लेट मी ट्राई, आई थिंक आई शुड गेट इट नाउ। ओके, इफ आई टेक दीज टू टुगेदर तो इसमें कॉमन क्या है? सी एक्स कॉमन है, अंदर बचेगा a प्लस बी। अगर मैं इन दोनों को साथ में लेता हूँ तो इसमें कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा a प्लस बी, और लास्ट ये दोनों रह जाते हैं। इन दोनों में कॉमन है माइनस 2x, अंदर क्या बचता है? सी एक्स माइनस 2 कॉमन है, माइनस 2x सी एक्स प्लस ए बी। ओके, कुछ जम नहीं रहा है ये। नेक्स्ट ग्रुपिंग, एक थोड़ा नया ग्रुपिंग करते हैं हम लोग। ये ग्रुपिंग कुछ जमा नहीं है अपने को। लेट्स ग्रुप माइनस 2cx स्क्वेयर विथ acx, मे बी दैट विल वर्क, एंड माइनस 2abx विथ bcx। ठीक है, सो इसमें से तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा a प्लस बी। माइनस 2cx स्क्वायर प्लस acx में से कॉमन आएगा माइनस cx। अगर माइनस cx में बाहर निकालता हूँ तो अंदर बचेगा 2x प्लस 2x, और cx माइनस बाहर चला गया, अंदर बचेगा माइनस a, 2x माइनस a। ओके, और ये दोनों में क्या कॉमन आएगा? माइनस 2abx प्लस bcx, bx कॉमन आएगा, सो आई विल से माइनस bx कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा माइनस bx बाहर निकालने से 2a माइनस x। एक में 2x माइनस a आया, एक में 2a माइनस x आया। यहाँ भी कुछ कॉमन समझ में तो नहीं आ रहा। ठीक है, सो ये भी फेल हो गया। आई एम ट्राइंग डिफरेंट ग्रुपिंग्स, देखते हैं किससे लगता है। ओके, अब मैं फाइनल इसके साथ ग्रुपिंग करूँगा, मैं थर्ड टर्म का लास्ट टर्म के साथ, और ये दोनों का ग्रुपिंग कर देंगे, देखते हैं कुछ कॉमन आता है कि नहीं। सो यहाँ पे माइनस 2cx स्क्वायर और प्लस bcx में cx कॉमन है, सो माइनस cx अगर मैं कॉमन निकालूँ
माइनस सी एक्स अगर मैं कॉमन निकालूं तो अंदर बचेगा 2x और माइनस बी, ठीक है। और माइनस 2ab(x) और ac(x) में से माइनस ax अगर कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा प्लस 2b माइनस bx, ax बाहर गया, 2b माइनस c। नहीं हो रहा यार, ये तो मे बी कुछ अलग ही है। रुको, लेट मी ट्राई समथिंग न्यू। शायद हम लोग कुछ गलत ही कर रहे हैं। Why not try this? A upon x minus a plus b upon x minus b minus 2c upon x minus c is equal to 0. Yes. Sir, actually, this question was there in the R.D. Sharma book, and when I checked the answer, sir, the answer is coming that what we got 2ab minus bc minus ac by a plus b minus 2c and 0. And 0. Yes. तो मतलब वही एक तरीका है जो हमने सॉल्व किया था। हाँ. नहीं, रुको ना, रुको। Let me try one more last thing, otherwise we have to check. अगर आर डी शर्मा में वो दिया है, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट हैव आर डी शर्मा, देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हटाना ही पड़ेगा, सो मे बी दिस कैन बी रिटन एज a ब्रैकेट x माइनस b x माइनस c प्लस b ब्रैकेट x माइनस a x माइनस c प्लस 2c ब्रैकेट टू सी ब्रैकेट x minus a x minus b the whole upon x minus a x minus b x minus c is equal to 0। तो मैंने LCM ले लिया तीनों टर्म का एक साथ। अब ये पूरा जो डिनोमिनेटर है ना, ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। सो आई कैन एक्चुअली सॉल्व ओवर हियर a ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस bx माइनस bx माइनस cx प्लस bc प्लस b ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस ax माइनस cx प्लस ac प्लस 2c ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab इक्वल्स 0। आई थिंक ये वही चीज़ देगा वापस हमको, बिकॉज देर इज नो अदर वे। ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर माइनस abx माइनस acx माइनस abx माइनस bcx 2c स्क्वायर cx स्क्वायर minus 2acx minus 2bcx plus 2abc plus abc plus abc is equal to 0। This is really weird, man.
आई डोंट नो वेयर दिस इज गोइंग. मे बी अगर कौशल बोल रहा है कि वही आंसर है तो पहले वाली मेथड बेटर नहीं कर. ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है. आई थिंक आई कैन गेट द आंसर राइट अवे. वेट 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 वेट, आई हैव समथिंग. ये रहा. दिस इज द क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन. गॉट इट. मैं मार दूंगा इन लोगों को. सेम आंसर आ रहा है जो मेरे को आ रहा है. एग्जैक्टली सेम व्हाट आई हैव डन अर्लियर. वही किया जो मैंने किया है. I'm sending you the answer in your group, okay? थोड़ा टाइम बर्बाद कर दिया इन्होंने कमीनों ने. वेट. Yeah. Yes, you are right. I will just send you from here. So मैंने ग्रुप में आंसर भेजा है. It is exactly the same what we had done earlier. एंड फालतू में मैं नेक्स्ट कुछ अलग करने गया. टाइम वेस्ट कर दिया मैंने. कोई बात नहीं, सीख रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट 35 38 करना ही पड़ेगा. ये 35 38 ये नहीं आया तो नाक कट जाएगी मेरी. इनफैक्ट पहले वाला आया था आंसर, बट उसने वो मोरल डाउन कर दिया आंसर देख के. एक्चुअली इट वाज देयर यार, इट्स राइट देयर. 35 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x
plus a raised to 4 minus b raised to 4 equals 0. हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्रैक्ड, मेंटली क्रैक कर दिया मैंने इसको. बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये, इट्स अ सुपर्ब क्वेश्चन. I just want to show you this, that a raised to 4 minus b raised to 4 is the constant term. x का कोएफिशिएंट 4a स्क्वायर है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है. ठीक है. So basically what I have over here is 4 multiplied by a raised to 4 times b raised to 4, a raised to 4 minus b raised to 4, which is the product of the coefficient of x square and the constant term. ठीक है. मुझे इसके फैक्टर ढूंढना है, तो इसके फैक्टराइज इसको मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, जस्ट टू गेट 4a स्क्वायर, एंड वी विल गेट इट. सो 4 को एज इट इज रख रहा हूँ, अंदर मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. डू यू गेट दिस? नो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो यही तो लिखा है मैंने. सो मैंने क्या किया है, ए रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4 है ना, उसको फैक्टराइज किया है. जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट व्हाट यू हैव लर्नड इन क्लास 9th and 8th. फैक्टराइजेशन. ए रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4 is a square the whole square minus b square the whole square, the difference of two squares, which is equal to a square plus b square into a square minus b square. अब समझ में आया how we got over here? ठीक है. सो मैंने वही लिखा है, सिर्फ मैंने क्या किया है, सो just remember what we do in splitting the middle term. What we do in splitting the middle term, we just multiply the coefficient of x square with the constant term, and then वो जो भी प्रोडक्ट आता है ना, उसके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं हम लोग. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस. अगर तुम्हें ये अभी समझ में आ गया है तो आगे का जर्नी बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. नाउ सी दिस. कैन आई राइट द फैक्टर्स एज 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स 2 ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? ऑफ कोर्स आई कैन. मैंने क्या किया, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म, ये दोनों, इन दोनों के प्रोडक्ट के फैक्टर्स लिख दिए मैंने. इन दोनों के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है 4 ब्रैकेट a4 माइनस b4 और उनके फैक्टर ये है. दीज आर द टू फैक्टर्स. अब मुझे ये दोनों फैक्टर का सम या डिफरेंस माइनस 4a स्क्वायर मिलना चाहिए, तो ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल होगा, और वो मुझे मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा? जस्ट सी. ये दोनों नंबर को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ. पहले मैं ऐड करता हूँ. तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर विल बिकम 4a स्क्वायर. हे, आई गेट 4a स्क्वायर. डू यू सी दैट? आई गेट 4a स्क्वायर विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज द मिडिल टर्म. दैट मीन्स ये जो दोनों हाईलाइटेड पार्ट्स है ना, ये दोनों फैक्टर्स है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ माय कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड उनका सम मुझे मिडिल टर्म दे रहा है. सो आई एम गोइंग टू स्प्लिट द मिडिल टर्म नाउ. सी हाउ आई राइट माई मिडिल टर्म. 4x स्क्वायर माइनस ये जो 4a स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ, उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ. हे, वन सेकेंड, मुझे माइनस 4a स्क्वायर चाहिए ना, तो कुछ तो गड़बड़ की है मैंने. हाँ, आगे यहाँ पे माइनस लगना चाहिए दोनों के आगे. -2 ब्रैकेट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो के आंसर हमें यही मिलेगा, बट इनका जो सम होगा ना, अगर आगे माइनस होता है तो इनका जो सम है वो -4a² आएगा, विच इज़ व्हाट वी वांट। तो माइनस की साइन को मैं बाहर रखता हूँ और अंदर मैं लिखता हूँ ये 2a² प्लस 2b² प्लस 2a² माइनस 2b²। ठीक है, ये मैंने मिडल में लिख दिया। इसको सॉल्व करके 4a² ही मिलने वाला है, -4a², सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, प्लस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे सर इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये तो दिमाग खराब कर देगा अपना। यस यू आर राइट। एक मिनट, एक और चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ। वेट इफ़ यू कॉपीड इट देन तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा इसको। डोंट कॉपी विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो माइनस ब्रैकेट में 2a² प्लस 2b² और यहाँ पे x डाल दूंगा, फिर से माइनस ब्रैकेट में 2a² माइनस 2b² और फिर से यहाँ पे x डाल दूंगा और फिर यहाँ पे लिखूंगा प्लस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0। दिस इज़ हाउ आई वांट टू राइट इट। अब तुम देखो यहाँ ज़रा ध्यान से कि ये जो मैंने 4a² को स्प्लिट किया है ना, उसको थोड़ा एक्नॉलेज करने की कोशिश करो, -4a² को। अगर ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ये टर्म को, अगर इसको तुम ओपन करोगे ना ये सबको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके, तो यू विल गेट -4a²x। यू शुड गेट, यू मस्ट गेट। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एपिटोम है, एपिटोम। इससे ज़्यादा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म डिफिकल्ट नहीं हो सकता। दिस इज द टफेस्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म you can ever come across. Really, I'm not joking. Because मेरे को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन समझाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इट्स लाइक दैट आई जस्ट वांट टू डू इट एंड गेट डन विथ इट। आंसर निकाल के मैं दे दूँ बस तुमको, बट द सैड पार्ट इज आई एम ए टीचर एंड आई कैन नॉट डू इट। मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने क्यों किया, कैसे किया, हाउ डिड आई थिंक ऑफ इट। ठीक है, ओके, नाउ we'll talk about taking out common. So grouping, पहले दो का ग्रुप, आखिरी दो का ग्रुप, पहले दो का ग्रुप, आखिरी दो का ग्रुप। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। See this, 4x² माइनस 2 बाहर निकाल लो अंदर से, a² प्लस b² x। ठीक है, इनफैक्ट एक काम करो, x को 2 के बाजू में लिख दो, x को 2 के बाजू में लिख दो, -2x ब्रैकेट a² प्लस b²। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा सॉर्टेड दिखता है। अच्छा, अब देखो माइनस, अच्छा यहाँ से भी 2x बाहर निकाल के लिखो, अंदर बचेगा a² माइनस b² प्लस a⁴ माइनस b⁴ is equal to 0. Now I'm just going to give colorful highlights to my first two terms and my last two terms, just as I do in the splitting the middle term. बस ये जो येलो वाले हाईलाइट और ऑरेंज वाले हाईलाइट, इन दोनों में से मुझे कुछ कॉमन निकालना है। प्लीज डोंट लीव मी ओवर हियर। 2x पहले येलो वाले हाईलाइट वाले दो टर्म में से कॉमन आएगा बाहर, 2x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 4x² में से 2x बाहर निकला तो 2x अंदर बचेगा, माइनस अंदर बचेगा a² प्लस b²। ठीक है, ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज कर दो, माइनस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एंड दिस इज क्रेजी। अगर तुम्हें नहीं समझाना ये,
इट्स अ शेम। मेरे पास यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पे ए रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4, और ए रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4 का फैक्टर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बाहर लेना होगा। अगर तुम उसको बाहर लेते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को माइनस के आगे लिखते हो, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा ये फर्स्ट टर्म जो है ना, ये वाली फर्स्ट टर्म, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बाहर निकल के अंदर बचेगा सिर्फ 2x, सिर्फ 2x बचेगा। इफ यू कैन एक्नॉलेज दैट, सिर्फ 2x बचेगा। लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ इट, दिस इज कंफ्यूजिंग, आई सी। ओके, अब सिर्फ 2x बचेगा। अब देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बाहर निकल गया, तो इधर बचेगा माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल आई थिंक splitting the middle term I have ever witnessed, since ये वाला टर्म और ये वाला टर्म exactly same आया। That is what happens in splitting the middle term। जो ये highlighted yellow term है ना, उसको मैं बाहर ले लेता हूँ। So 2x माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर आ गया, और अंदर बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाओ, फैक्टराइज्ड, कंप्लीटली फैक्टराइज्ड, और इक्वल टू 0 भी आया। अब आ जाएगा x, अब आ जाएगा x। देयरफॉर इसको बोलते हैं परसिवरेंस। 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0, और 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स 0, ठीक है। सो 2x इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2x equals a square minus b square. So x equals a square plus b square by 2, or x equals a square minus b square by 2। x की दो वैल्यूज। ऐसा मुझे लगा कि तालियां बजाएगा। What other method? मैंने कैसे किया, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a रेज़ टू 4 कॉमन लिया, तो सर वो किया तो हमें ओह यस 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 यस, वो तुम्हारा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो। 2x प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, राइट? yes 2x माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, और फिर तुम या यू कैन डू इट, उससे इजीली आ जाएगा यार। दैट इज ऑल्सो वन पैटर्न, मीन्स तूने पैटर्न निकाल लिया यार, अच्छा है, गुड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, कौशल ने अलग मेथड से पैटर्न निकाल के किया, वेरी गुड, वेरी नाइस। आंसर यही है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। बहुत बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आता है, और ये इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसमें एक ही तरीका है करने का, तुम कुछ भी कर लो आंसर नहीं निकलेगा, वो एक ही मेथड है जिससे आंसर निकलेगा। 38th वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आज सिर्फ हमने डाउट सॉल्विंग किया। आर यू गाइज फीलिंग गिल्टी? आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, बट इट्स ओके। अगर डाउट ही सॉल्व नहीं होगे तो क्या मतलब है, सिलेबस तो स्कूल में भी ख़त्म होता है। डाउट तो सॉल्व मैं ही करूँगा ना। चलो देखते हैं। प्रणव, तेरा कैमरा क्यों ऑफ हो गया वापस? प्रणव, तू बीच में कैमरा क्यों बंद कर देता है? अरे हाँ, ये तेरे को क्या, तेरे को कोई वॉचमैन चाहिए क्या तेरे ऊपर, जो देखता रहे हमेशा कि तू ध्यान दे रहा है कि नहीं, तू तेरा कैमरा चालू है कि नहीं, तू होमवर्क कर रहा है कि नहीं, तू पढ़ाई कर रहा है कि नहीं? तेरे को क्या मैं वॉचमैन लगता हूँ? हाँ,
वॉचमैन हूं मैं। पूरा जॉब प्रोफाइल ही चेंज कर दिया भाई, एकदम पूरा टीचर से वॉचमैन, प्रोफाइल ही चेंज कर दिया। नहीं, आप टीचर नहीं हो, आप वॉचमैन हो। छोड़ यार प्लीज, मेरे को नहीं पढ़ना है इसमें। उसने क्या नहीं खरीदा, उसका कैम क्यों ऑफ है, उसका ध्यान क्यों नहीं है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने जिसमें 6-7 लोगों को डाउट। ओके, वन अपॉन ए प्लस बी प्लस 2x and 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon 2x. Let me write it over here. ये देख फिर से बंद हो गया उसका कैमरा। कितना कमीना बच्चा है ये। बे कैमरा ऑन कर बे, इडियट। जैसे ही मैं कुछ लिखता हूं ना कैमरा बंद कर देता है। आई एम श्योर वो यूट्यूब पे कुछ माइनक्राफ्ट खेल रहा होगा, देख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, 1 upon a plus b plus 2x minus 1 upon 2x is equal to 1 upon a plus 1 upon b। सिर्फ ये 1 upon 2x को ये साइड लेना है, सिर्फ 1 upon 2x को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2x, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2x माइनस 2x। कुछ तो गड़बड़ की, सॉरी, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 2x द होल अपॉन 2x ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा ना, यहाँ पे b और यहाँ पे a। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू गेट a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, ठीक है, अब चिल 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 गाइज, ये इतना इजीली सॉल्व होने वाला है। अब देखो यहाँ पे 2x माइनस a माइनस बी माइनस 2x, ठीक है, द होल अपॉन, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करने की गलती करते हैं, मत करो, अभी नहीं करना। 2x ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ होने वाली है, ये देखो, ये 2x और ये माइनस 2x कट होने वाला, ये 2x माइनस 2x कट हो गया। ठीक है, अभी ऊपर माइनस है माइनस बी बचा ना, उसमें से माइनस बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा a प्लस बी द होल अपॉन 2x ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 2x। अच्छा, यहाँ भी ऊपर बचेगा a प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा ए बी। ठीक है, अब क्या करोगे, तुम्हारे इंस्टिंक्ट क्या बोलते हैं तुमको, क्या बोलती है पब्लिक? हाँ, यस यस यस, दोनों न्यूमरेटर में से a प्लस बी उड़ाओ, हटाओ उसको, तो क्या बचेगा? अच्छा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, ये ए बी को ऊपर लेके आओ यहाँ पे, तो माइनस ए बी इक्वल्स 2x ब्रैकेट a प्लस बी प्लस x, सॉरी 2x। आर यू गेटिंग इट? हो गया यार, ऑलमोस्ट होने आया है, ये खत्म होने आया है अभी। ये देखो, अब दूसरी साइड से ओपन कर दो ब्रैकेट,
सो क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वेयर। ठीक है, इसको ये साइड ले लो। सो 4x स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस 2bx प्लस ए बी इक्वल 0। बस अब तो ग्रुपिंग एंड टेकिंग आउट कॉमन है, और क्या है, कुछ भी नहीं। पहले दो का ग्रुप बनाओ, 2x कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 2x प्लस ए, प्लस यहाँ से कॉमन निकलेगा सिर्फ b, अंदर बचेगा 2x प्लस ए। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकलेगा 2x प्लस ए, अंदर बचेगा 2x प्लस बी। therefore 2x plus a is equal to 0 or 2x plus b is equal to 0. Therefore x is equal to minus a by 2 or x is equal to minus b by 2. The most intelligent question which I love to do every time, because एक ही तरीका है, यही तरीका है, हमेशा याद रखना, और कोई तरीके से नहीं आता। दिस इज द ओनली वे यू क्रैक इट। निकल गया, वो भाग गया प्रणव, इडियट। नोट कर लो सब लोग। डन, नोट कर लिया। ठीक है, तो आज हमारा पूरा टाइम डाउट सॉल्विंग में गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। विच वन? द लास्ट वन? Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट समथिंग न्यू।